Hello everyone. So welcome to another session. Today we are going to learn about the P block elements, and this P block elements is quite an important chapter. So in class 11th we will learn about group 13 and group 14, and in class 12th we will learn about group 15, 16, 17 and 18. So in class 12th, yes, it's a big chapter, but in class 11th it's not a big chapter, but it's actually a very important chapter, because you will learn a lots of factors in this chapter, and you will get to know lots of new things. You will get to know a lots of new concepts, and there are some linkages from chemical bonding. As it's an inorganic chapter, definitely you will get more and more linkages from chemical bonding chapter. So one by one we will discuss it all, but as the name suggests, let's start the P block elements. And P block means what? So we know the name P block is definitely connected with the p orbitals, and the p orbitals, we know that in p orbitals there are three degenerate orbitals which can accommodate up to maximum 6 electrons. We know that in p orbitals we can accommodate up to maximum 6 electrons. These are quite previous things that you have already learnt in your previous chapters. So we call it as px, py, pz, and in each degenerate orbital we can fill up 2 electrons. So this is not a new thing, but why it is called as p block elements? So it's called as p block elements because the last electron that enters into the p orbital, so what we can say, so it's named as p block orbitals because the last electron enters the p orbital, so it's known as p block elements. So we know we can accommodate up to 6 electrons. So that means when the configuration will end at p1, there will be one group. When the configuration will be p2, there will be another group. So we can find group 13, 14, 15, 16, 17 and 18, and those all are combinedly known as p block elements. So as you know, so far we call it as group 13, group 14, group 15, group 16, group 17, and this is obviously group 18, which we call it as नोबेल गैस एलिमेंट्स. सो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ से बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड दिस नोबेल गैस एलिमेंट्स ग्रुप. तो नॉर्मली हम लोग ऐसे बोलते हैं बोरन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, these are halogens and these are noble gases elements और inert gas elements, ऐसे बोलते हैं हम लोग. सो डेफिनेटली अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे ग्रुप 13 के फर्स्ट एलिमेंट्स, तो आपको पता है दिस इज सेकेंड पीरियड, राइट, एंड सो फर्दर दिस इज थर्ड पीरियड, दिस इज फोर्थ पीरियड, एंड दिस इज फिफ्थ वन, this is the sixth one, and further this is the seventh one, right? So the interesting thing is when going to write the configuration, because जैसे कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि p ब्लॉक क्यों बोलते हैं हम लोग, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो p में एंटर करता है. जैसे कि अगर आप लोग कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो नॉर्मल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है p ब्लॉक एलिमेंट्स के, वो क्या बोलते हैं हम लोग, NS2 NP126, ये जो होता है नॉर्मल ट्रेंड होता है. और p ब्लॉक ऐसा एक यानी कि ब्लॉक है जहाँ पे आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड सारे के सारे दिख जाएंगे. मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ये जो आपको ऐसे दिख रहा है, ये जो यानी कि एक डिफरेंट कलर हुआ है जिस पर मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आपको. सो एज यू कैन सी दिस डायगोनल पोर्शन, दिस डायगोनल एक्चुअली यू कैन ऑल्सो से दिस डायगोनल डिवाइड्स, दिस डायगोनल divides metals and non-metals from the metalloids. So you can say the left hand side part, like this part is metallic and this part is non-metallic, and the diagonal part is itself metalloids. So this is a diagonal which divides the metals and non-metals from the metalloids. So this is these are some things that you have already learnt in your previous chapters. So we are not going to discuss much about that, but what we are going to discuss more is its configuration, why there is some change in oxidation state, and we are going to learn three important concepts that you will know, that you have already learnt in chemical bonding, I think, which is D block contraction,
and lanthanide contraction and inert pair effect. We are going to learn it further, but let me write all the elements once again. Ready that this starts from the second period and this is third period. We can see this is period number and this is fourth one, this is fifth one, this is sixth one and further. तो हमारे पास जो पीरियड्स है, तो यानी कि यहाँ से हम लोग अगर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे थोड़ा सा, जैसे कि मैंने बोला जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो NH2NP1 to 6 है. दैट मीन ग्रुप 13 का जैसे बोरॉन का हमें पता है, तो उससे हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं. इसका होगा NH2NP1. तो ये क्या होगा, अब तो ये बोलने की ज़रूरत नहीं है. NH2NP2, NH2NP3, दिस विल बी NH2NP4, NH2NP5 and this is NH2NP6. सो इतना ही डिफ़िकल्ट है नहीं. तो देखो जैसे कि पीरियड नंबर अगर 2 है तो बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, डेफिनेटली 2s2 2p1. फिर एल्यूमिनियम का होगा 3s2 3p1. ऐसे सर गैलियम का 4s2 4p1. आप ये कर सकते हो. जैसे इसका होगा 2s2 2p2, फिर इसका होगा 3s2 3p2. तो ऐसे आप लोग कर सकते हो. दिस आई कैन एक्सपेक्ट. देखो एक होता है ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर, तो यानी कि जो मैक्सिमम यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको लेके हम लोग डिसाइड करते हैं. पर यहाँ पे क्या होता है, आपको एक स्पेशल फैक्टर देखने को मिलेगा. जो ग्रुप 13, 14 और 15 होते हैं, यहाँ पे जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे 2 कम ऑक्सीडेशन कुछ एलिमेंट्स के आते हैं. जो बेसिक या हम लोग मोस्ट यानी कि एक्यूरेट रीजन बताते हैं, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट. बट 2 अदर फैक्टर्स भी काम करते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं डी कॉन्ट्रैक्शन एंड डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन एंड अनदर वन इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. तो देखते हैं. तो अगर देखो नॉर्मल में नीचे अगर पूरे इसके इस ग्रुप को बताऊं, ग्रुप 13 के बारे में, तो ग्रुप 13 में मोस्टली जो दिखेंगे हमको ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +3. आप देख सकते हो इधर 2 इधर 1, 3 इलेक्ट्रॉन है तो +3 होगा मैक्सिमम. इधर कितना होगा बताओ, 4. NH2NP2 है तो इधर जो जनरल आएगा वो +4. वैसे नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं नाइट्रोजन में यहाँ पे 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन दे के ये इलेक्ट्रॉन ले, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो सकता है. ऐसे भी बोलते हैं हम लोग. इसके केस में हमें जो मोस्ट फेवरेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 दिखता है. और यहाँ पे क्या दिखता है हमें, NP5 में -1 मोस्ट प्रोबेबल या मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट बोलते हैं हम लोग, और इसका तो 0 होता है. लेकिन यहाँ पे ग्रुप 13 के केस में आपको +1 भी दिखेगा, इधर +2 दिखेगा, इधर +3 भी दिखता है आपको, इधर आपको +6 भी दिखता है. तो ऐसे बहुत सारे मतलब आपको वेराइटीज़ दिखेंगे. और जैसे कि हम लोगों को ग्रुप्स के बारे में पता है, हम लोग बोलते हैं कि जब भी कोई यानी कि ग्रुप हो, अगर हम लोग डाउन द ग्रुप आते हैं, एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है. एंड व्हेन वी गो अक्रॉस द पीरियड, सो द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. डाउन द ग्रुप इंक्रीज एंड अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, इंक्रीज होता है. पर ग्रुप 13, 14, 15 या पी ब्लॉक में ये रेगुलर ट्रेंड थोड़ा फॉलो नहीं होता है. दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. सो इसके लिए हम लोग 3 इंपॉर्टेंट हम लोग बोल सकते हैं रेगुलर ट्रेंड. आप लोग मेरे साथ साथ भी लिख सकते हो. रेगुलर ट्रेंड इन साइज इज नॉट सीन और इज नॉट देयर. तो 3 इंपॉर्टेंट इसके लिए फैक्टर सीखेंगे हम लोग, जो कि है डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, एक है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और एक है इनर्ट पेयर इफेक्ट. मोस्टली इन तीनों के बारे में सीखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप मेरे साथ साथ लिखते चलो. तो पहले हम लोग सीखते हैं डी ब्लॉक या डी ऑर्बिटल, जो लिखा है मैंने, डी ब्लॉक कंट्रैक्शन कौन से केस में आता है ये भी आप लोगों को बताऊंगा मैं. आप लोग थोड़ा ध्यान दो. अब देखो, मैं अगर पूछूंगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ पे आते हैं, कौन से पीरियड पे डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, हमें क्लियरली पता है आंसर 4th पीरियड. तो यानी कि ये जो गैलियम लिखा हूँ मैं इधर 4th पीरियड, तो इधर 4th पीरियड से क्या होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट का इंट्रोडक्शन होगा, स्टार्ट हो जाएगा. तो जो थोड़ा सा हमें चेंजिंग देखने को मिलेगा वो एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में देखने को मिलेगा, विच इज़ डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन.
क्योंकि उनके बीच में जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स आने लगेंगे वो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखा रहे होंगे, जिसके वजह से वहाँ पे इरेगुलर ट्रेंड होता है। अब सोचो गैलियम से इंडियम जाते वक्त वहाँ पे ए ब्लॉक का इंट्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। जैसे हम लोग नीचे नीचे आते हैं, धीरे धीरे ए ब्लॉक के एलिमेंट्स भी कुछ कुछ एंटर होना स्टार्ट कर जाते हैं, तो उसके वजह से वहाँ पे भी हमें क्या होता है, वहाँ पे थोड़ा इरेगुलर ट्रेंड देखने को मिलता है। सो दैट मीन्स वहाँ पे कुछ रीज़न है जो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, आप लैंग्वेज लिखते चलो समझ जाओगे, ऑन मूविंग फ्रॉम थर्ड पीरियड टू फोर्थ पीरियड, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि नंबर में 10 है, comes into action, come into action। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है कि द शिल्डिंग पावर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर वेरी वेरी पुअर। तो अगर हम लोग शील्डिंग इफेक्ट की बात करेंगे, शील्डिंग पावर, तो हमें पता है वो क्या होता है, एस पी डी, उसके बाद क्या होता है एफ। सो द शील्डिंग पावर ऑफ डी इज पुअर। आप सोचो अगर शील्डिंग पावर डी का कम होने लगेगा, सोचो कि ये न्यूक्लियस, तो मान लो ये न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही शील्डिंग पावर क्या होगा, कम होने लगेगा, तो न्यूक्लियस इसको और ज़्यादा क्या करेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। बिकॉज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो जो साइज होगा वो साइज क्या होगा, डिक्रीज होना चाहेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा होगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने को ट्राई कर रहा होगा, तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जैसे ही मतलब इसके वजह से डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन के वजह से साइज क्या होगा, डिक्रीज होना चाह रहा होगा। तो साइमल्टेनियसली आपको पता है जो हम लोग डाउन द ग्रुप आते हैं, डाउन द ग्रुप यानी कि ऑर्बिटल के नंबर बढ़ने के वजह से साइज को क्या कर रहा होगा, वो इंक्रीज करवाने को चाह रहा होगा। डाउन द ग्रुप जब आते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के वजह से साइज बड़ा होने को ट्राई करता है, और ये शील्डिंग पावर पूरा होने की वजह से वो उसको कम करवाना चाहता है। तो उनके बीच में क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा डेफिनेटली, एक बढ़ाना चाहता है, कम करना चाहता है, तो डेफिनेटली उनके बीच में क्या होगा, बैलेंसिंग क्रिएट होगा। सो इसीलिए जो एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज है, दे आर ऑलमोस्ट वेरी क्लोज वैल्यूज, दे आर रियली क्लोज, दे आर रियली क्लोज। उनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो काफ़ी क्या होते हैं, यानी कि क्लोज होते हैं, तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, विच इज़ नोन एज यानी कि डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द शील्डिंग, पुअर शील्डिंग ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर गेट अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, so that there is a decrease in atomic size which is known as d block contraction, right। तो वैसे हम लोग फिर से लिखेंगे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ओके। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, तो जैसे हम लोग उसके नेक्स्ट पीरियड पे आना स्टार्ट करेंगे, तो ड्यू टू द एफ ब्लॉक या लैंथेनाइड्स के आने के वजह से क्या होगा, वो भी एटॉमिक साइज को डिक्रीज करवाना चाह रहे होंगे, क्योंकि एफ का जो शील्डिंग पावर है, एफ का जो शील्डिंग पावर है, द शील्डिंग पावर ऑफ एस इज वेरी लेस, वेरी लेस। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर तो अच्छा खासा अट्रैक्शन फोर्स पड़ रहा होगा न्यूक्लियस का, तो जो साइज होगा, जो साइज होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल फेस मोर अट्रैक्शन फोर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। वैसे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आप डिटेल्स में पढ़ोगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा मैंने लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आपको बता दिया है।
तो जैसे हम लोग फोर्थ पीरियड से यानी कि फोर्थ पीरियड से फिफ्थ पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है, फोर्थ पीरियड टू फिफ्थ पीरियड से जाने में ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है हमें, जिसके वजह से हम लोग बोलेंगे गैलियम और इंडियम में भी साइज़ क्या है, ऑलमोस्ट क्लोज है। तो आप बोलोगे सर एल्यूमिनियम और गैलियम में ऑलमोस्ट सेम है, गैलियम और इंडियम आप बोलो ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, साइज़ का डिफरेंस तो है पर दे आर ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि साइज़ का ट्रेंड क्या है वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, बट दे आर ऑलमोस्ट द सेम। तो आपको दो फैक्टर समझ में आ गए, एक हो गया पहले डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा हुआ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पुअर शील्डिंग पावर ऑफ डी, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल गेट more attraction force by the nucleus. That's why the size of atom will try to decrease, and due to the increase in the cell numbers, the atom size is getting bigger, so they will counterbalance each other and the size will be almost same. Similar is for lanthanide contraction, lanthanide और actinide जैसे बोलते हैं हम लोग। तो ये काफ़ी अच्छा रीज़न है जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम के साइज़ को कंपेयर करने के लिए। और आप लोग ये ध्यान में रखना कि ये जो बता रहा हूँ ना मैं सब, और जो अभी इनर्ट पेयर इफेक्ट बताने वाला हूँ नेक्स्ट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो ये मोस्टली ग्रुप 13, 14 और 15 के लिए देखने को मिलता है, बाकी के लिए इतना नहीं होता। देखो ये नाम याद रखने में, इनर्ट पेयर इफेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये याद रखने में या समझने में कोई डिफिकल्ट है नहीं। एज अ नेम सजेस्ट इनर्ट पेयर, दैट मीन्स देखो इनर्ट पेयर का मतलब क्या होता है कि कोई तो एक पेयर होगा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा, तो हम लोग ये बोल सकते हैं द रिलक्टेंस, डेफिनेशन लिख लेते हैं, द रिलक्टेंस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स और एस ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स इन केमिकल बॉन्डिंग is called inert pair effect। अब देखो इस बात का मतलब समझो आप लोग, इसका मीनिंग क्या है। तो सोचो मैं यहाँ पे बोरॉन लिख रहा हूँ, एल्यूमिनियम, गैलियम, जैसे जैसे मैं नीचे डाउन द ग्रुप आ रहा हूँ, इसका क्या होगा साइज 3s2, 3p1 है का कॉन्फ़िगरेशन, इसका होगा 2s2, 2p1, ये आप लोगों को पता है। अब आपको पता है एस और पी में से न्यूक्लियस के पास कौन रहता है, एस रहता है, ऐसे रहता है। अब सोचो जितना हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट का जो यानी कि इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो उतना ही अच्छे से टेंडेंस करता है, यानी कि द इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस। अब सोचो जितना जितना ये पॉजिटिव होगा और जितना ये क्लोज होता जाएगा इससे, तो ये उसको उतना ही अट्रैक्ट करेगा। ये हम लोग मोस्टली ग्रुप 13, 14, 15 में देखते हैं कि इधर जितना हम लोग साइज़ बढ़ाते हैं तो ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये क्या होते हैं, मोर एंड मोर अट्रैक्ट होते हैं न्यूक्लियस के वजह से, तो वो न्यूक्लियस से अटैच होकर रहते हैं। तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इधर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो नॉर्मली तीनों इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन से 3 देखने को मिलता है, क्योंकि 3 वो रिलीज़ कर सकता है। लेकिन अगर ये 2 एस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा अटैच होकर रहेंगे तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सो दे आर इनर्ट टुवर्ड्स बॉन्डिंग। सो दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इनर्ट टुवर्ड्स बॉन्डिंग, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो सोचो इस केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आने वाला था, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट ही नहीं होंगे या बाहर नहीं निकलेंगे, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो कितना आएगा, ओनली +1 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है वो 2 यूनिट से डिफर कर रहा है, एंड दिस इज ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जितना हम लोग डाउन द ग्रुप आएंगे, द टेंडेंसी फॉर इनर्ट पेयर इफेक्ट वो क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। तो जो बोरॉन होगा, बोरॉन का अगर हम लोगों को +3 मिलेगा, तो जैसे जैसे हम लोग इसका डाउन द ग्रुप आके हम लोग यानी कि थर्लियम के पास पहुंच जाएंगे,
तो थैलियम पे इसको क्या देखने को मिलेगा, +1 देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही। जैसे कि आप लोग फिर से देख लो यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जब मैं लिखा हूँ कि बोरॉन का अगर इधर देखो आप लोग, मैं दूसरा कलर यूज़ करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इधर मैं बोलूँगा अगर बोरॉन है, यहाँ पे देखो बोरॉन का अगर हमें मिल गया +3, तो यहाँ पे हमें थैलियम का कितना मिलेगा, +1। इधर अगर हमें मिल गया कार्बन का +4, तो इधर लीड का कितना मिलेगा बताओ, +2। तो इधर अगर +3 है, सॉरी +5 भी बोलते हैं हम लोग, +5 तो नॉर्मली -3 भी दिखाता है, तो इधर हम लोग बोलेंगे इधर -1 दिखाएगा, नहीं तो इधर +3 भी दिखा सकता है। जो मोस्ट स्टेट है ऑक्सीजन स्टेट बिस्मथ का लास्ट का, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट में कंसीडर करते हैं। आई थिंक इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट से हम लोग एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग आंसर ट्राई करने को, मतलब आंसर ट्राई करना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग will be a good oxidizing agent? आपके पास ऑप्शन है PbCl4, सॉरी PbCl4 एंड अनदर वन इज SnCl4। आपको इन दोनों में से चूज़ करना है कि कौन सा क्या होगा, अच्छा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप लोग क्या करो, इसको आंसर को मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा इनमें से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच के बताओ मुझे आप लोग। आंसर ढूंढते हैं। देखो PbCl4 और SnCl4 के बीच में अगर मैं बात करूं, Pb यहाँ पे कितने ऑक्सीजन स्टेट में है, Pb है यहाँ पे +4 ऑक्सीजन स्टेट पे। इधर Sn कितना है, Sn है +4 ऑक्सीजन स्टेट में। तो मान लो मैं Pb4 से Pb+2 कर लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो सिंपल रूल आपको पता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, खुद हो रहा है रिडक्शन। जो खुद रिड्यूस होता है वो दूसरों को क्या करता है, ऑक्सीडाइज। तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। पर देखना हमें कि इनमें से अच्छा कौन सा है। तो सोचो, जब हम लोग यानी कि सेकेंड ग्रुप 14 को देखते हैं, तो लीड सबसे लास्ट में है, जो कि Pb+2 में बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट मीन्स Pb+2 टू Pb4 विल हैपन वेरी गुडली, क्योंकि Pb+2 जो है वो मोर फेवरेबल है। हमें पता है कि Pb+4 दिखाता है, +2 दिखाता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड अदर यानी कि फैक्टर्स। सो दैट्स वाई Pb+4 से Pb+2 आराम से हो पाएगा। सो PbCl4 जो होगा वो क्या होगा, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इट विल बी बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। को पता है जो चीज़ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो खुद क्या होता है, रिड्यूस अच्छा होता है। जो खुद रिड्यूस होता है वो दूसरों को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग अनोमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप्स इन P ब्लॉक। इट इज़ ड्यू टू, देखो अनोमलस बिहेवियर क्यों बोल रहा हूँ मैं। देखो जो मैं फर्स्ट एलिमेंट बोल रहा हूँ यानी कि ग्रुप 18 में, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक, मोस्टली ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक मोस्टली, या 13, 14, 15 जो उनमें अब कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलेगा आपको। तो अनोमलस बिहेवियर डिफरेंट प्रॉपर्टी क्यों दिखाते हैं वो लोग, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, आप इसको समझ जाओ कि बोरॉन जो होता है, बोरॉन पे हमें क्या मिलता है, सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होता है, जिसका कॉन्फिगरेशन हम लोग 2s2p1 बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग एल्यूमिनियम पे आ जाते हैं, वहाँ पे होता है 3s2 3p1। वहाँ पे 3d, जैसे कि मैं लिखूँगा यहाँ पे, पहले एग्जांपल समझा देता हूँ। बोरॉन और एल्यूमिनियम बात करते हैं। देखो बोरॉन पे यहाँ पे क्या होता है, बोरॉन के केस में हमारे पास कॉन्फिगरेशन आता है 2s2 2p1। हमें पता है 2d तो एग्जिस्ट करता नहीं है। एल्यूमिनियम का हमें पता है 3s2 3p1 होता है। यहाँ पे क्या होता है, 3d नहीं होता और यहाँ पे डी ब्लॉक स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि
जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो वो इस पीरियड में स्टार्ट हो रहे होते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम के केस में क्या होता है, 3D जो होता है वो वैकेंट होता है, क्योंकि हमें पता है 3s 3p 4s 3d, तो 3 है तो d होगा लेकिन वो वैकेंट होगा। तो यहाँ पे 3d जो होगा वो वैकेंट होगा। लेकिन यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल का तो केस ही नहीं है, क्योंकि 2 तक ही है, 2s 2p तक है, तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि इनका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। और इनके पास क्या होता है, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। और इनका साइज क्या होता है, स्मॉल साइज, ये बोल सकते हैं हम लोग। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे कि आप देखो ना, मैं नाइट्रोजन वाला ग्रुप अगर लिखूँ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, तो हमें क्या होता है, एन, बहुत सारे आंसर आप इस क्वेश्चन से दे सकते हो। NCl5 हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, पर PCl5 कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी कोई एलिमेंट रिसीव करेगा, जैसे कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के बीच में आप सोचो, फॉस्फोरस के पास अगर कोई एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा वो अपने वैकेंट ऑर्बिटल में स्टोर करके रख पाएगा। लेकिन नाइट्रोजन के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, साइज छोटा है, रिलेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको दे पाएगा। अनोमलस प्रॉपर्टी इसीलिए दिखाता है। आई थिंक आपके ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसके बाद कुछ ट्रेंड्स देखते हैं, जो कि है साइज़ का ट्रेंड। देखो मैं अगर ऐसे लिखूं, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप 13 से स्टार्ट करते हैं। चलिए ग्रुप 13 एलिमेंट्स के बारे में लिखते हैं। ग्रुप 13 में एलिमेंट्स कौन से आते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब देखो जैसे कि मैंने बोला, एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, इंडियम और थैलियम के क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ऑलमोस्ट साइज सिमिलर होते हैं। लेकिन आपको क्या होगा, एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आप सुनो, साइज जो होता है यहाँ पे। अब देखो बोरॉन का सबसे क्या होता है, बोरॉन का सबसे छोटा साइज होगा, डेफिनेटली सबसे छोटा साइज होगा। अब बात है इन चारों में साइज किसका बड़ा होगा। देखो नॉर्मली मैंने क्या बोला, एल्यूमिनियम और गैलियम का ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। क्यों होगा, क्योंकि डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन है। लेकिन गैलियम इंडियम भी क्या हुए होंगे, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व हुए होंगे। तो जो गैलियम का साइज आएगा वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा एल्यूमिनियम से। लगता तो यही है कि पहले बोरॉन फिर एल्यूमिनियम, गैलियम साइज जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आएंगे वो ज़्यादा होते रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे गैलियम देखो दोनों ही प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, तो जो गैलियम का साइज होगा वो एल्यूमिनियम से थोड़ा छोटा होगा, बहुत लेस वैल्यू, दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर। वैसे ही क्या होगा, इंडियम क्या होगा, थैलियम से छोटा होगा। तो यहाँ पे ये ट्रेंड आप यानी कि फॉलो कर सकते हो, BGAALINTH, थैलियम। तो ये जो होता है साइज़ का एक्चुअल ऑर्डर होता है। आपको आपका काम क्या करना है, आपको NCERT में आपको एक टेबल गिवन होगा। देखो ये सारे जो डेटा या वैल्यूज़ मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल होता है। जितना आप यानी कि हम लोग जो कोई भी प्रॉपर्टी या कुछ भी एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली ऑन द एक्सपेरिमेंटल बेसिस। पहले एक्सपेरिमेंट होता है, फिर हम लोग उसके हिसाब से उसका डेफिनेशन यानी कि बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे बचपन में होता था ना कि आपको अगर क्वेश्चन का आंसर दे दो तो आप ऑलमोस्ट कभी कोई लोग उसका सॉल्यूशन निकाल देते थे। तो ये काइंड ऑफ उसी तरह का है। पहले हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ देखा, फिर हमने उसके हिसाब से अपना एक्सपीरियंस यानी कि हमने अपना एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट कर दिया। तो ये कुछ उसी तरह का ही है। तो आपको साइज़ का प्रॉपर्टी शायद आपको देखने को मिल गया होगा। और इसमें एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आयनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी आपको देखो कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर, स्पेशली ग्रुप 13 के। नीट में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, जेई में रिपीटेडली साइज के ऊपर, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के ऊपर क्वेश्चन आते ही जा रहे हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी एक बहुत अच्छा खासा कॉन्सेप्ट बन जाता है। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। बाहर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना मिनिमम एनर्जी चाहिए हमें,
वो क्या होता है, दैट इज़ नोन एज द आयनाइजेशन एनर्जी। तो नॉर्मली हम जो रेगुलर ट्रेंड देखेंगे, अगर मैं बोलूँगा व्हाट इज़ द रेगुलर ट्रेंड, नॉर्मल ट्रेंड, नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है, यानी कि ये होना चाहिए था, यानी कि बोरन जैसे जैसे हम लोग अक्रॉस द पीरियड जाएंगे वो क्या होता है, छोटा होता जाता है, जैसे डाउन द ग्रुप आएंगे, सॉरी जैसे जैसे हम लोग अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, बढ़ता रहना चाहिए, और डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होना चाहिए। सॉरी मैंने उल्टा ऑर्डर लिख दिया ये, जो बोरन का होगा, बोरन, बोरॉन के बाद उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम, थैलियम, जैसे से हम लोग डाउन द ग्रुप आएंगे, एटॉमिक यानी कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी सो डिक्रीज। तो ये रेगुलर ट्रेंड होना चाहिए, पर एक्सपेरिमेंटल डाटा है तो ये ऐसा फॉलो नहीं होता। जो एक्चुअल आंसर है, देखो वैसे हम लोग इसको यानी कि जो तीनों प्रॉपर्टी मैंने सीखा है उसके हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली दिस कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल फॉर्म। तो जो एक्चुअल आंसर है उसका क्या होगा, बोरॉन का सबसे हाईएस्ट है, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पे टीएल आता है। और जो यहाँ से मैं वैल्यू लिखूँगा, 4 वैल्यूज, यानी कि इन चारों के बीच में, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम के बीच में जो वैल्यू आप चेक करके देखना एनसीईआरटी टेबल से, वो वैल्यूज़ बहुत ही क्लोज है, बहुत ही क्लोज वैल्यूज़ हैं, ज़्यादा डिफरेंस उनमें है नहीं। तो उसके बाद क्या आता है, टीएल के बाद आता है गैलियम, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद आता है इंडियम। जो ऑर्डर है वो इसी ऑर्डर में आता है आयनाइजेशन एनर्जी। ट्राई टू रिमेंबर दिस वन एंड ट्राई टू रिमेंबर ये नहीं है, ये रेगुलर ट्रेंड होना चाहिए था पर ये होता नहीं है। साइज और आयनाइजेशन एनर्जी, दिस इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट, और बाकी के प्रॉपर्टी आप टेबल से निकाल के देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक बहुत सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्लियर हो गए हैं, आप इधर से कर सकते हो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट थोड़ा केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट दैट वन। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टी, दिस इज़ रिएक्शन विथ एयर। मेरे साथ साथ लिखते चलो, बहुत ईजी है। तो पहले हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। जब अगर ऑक्साइड फॉर्म करेंगे हम लोग, तो ग्रुप 13 के बारे में पहले सीख रहे हैं हम लोग, तो हमें पता है +3 दिखाता है या तो +1 दिखाता है। तो या तो जो फॉर्मूला होगा ऑक्साइड का वो M2O3 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, MO होना चाहिए, क्योंकि या तो वो +3 शो करता है या तो +1 शो करता है। सो आउट ऑफ दोज टू यू कैन राइट M2O3 और MO, बट सारे के सारे नहीं दिखाते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं लिख लेता हूँ, आप नोट डाउन कर लो, बहुत ईजी है। So let's note down those points. So impure boron forms B2O3 while pure boron doesn't form B2O3। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं जो इम्प्योर बोरॉन है, यानी कि कभी कभी इसको अमरफोस बोरॉन भी बोलते हैं हम लोग। अमरफोस बोरॉन जो है वो B2O3 फॉर्म करता है, वाइल जो क्रिस्टलाइन बोरॉन है वो फॉर्म नहीं कर पाता है। बाकी इसको छोड़ के एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम, इंडियम, ये सारे के सारे क्या करते हैं, यानी कि M2O3 और MO फॉर्म करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसके रिएक्शन आराम से लिख सकते हो, लेकिन इसमें एक पॉइंट है। मैंने एल्यूमिनियम के बारे में बोला ना, एल्यूमिनियम का एक स्पेशल केस है। एल्यूमिनियम जब फॉर्म करता है तो ये क्या करता है, Al2O3 बनाता है, पर Al2O3 क्या करता है, Al2O3 फॉर्म्स लेयर ओवर द एल्यूमिनियम। तो जैसे ही Al2O3 क्या करता है, एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर फॉर्म कर देता है, तो इसके वजह से एल्यूमिनियम का रिएक्शन फर्दर क्या होता है, एल्यूमिनियम के एयर के साथ, यानी कि ऑक्सीजन के साथ वो और नहीं हो पाता है। अब सोचो, जैसे ही एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, Al2O3 फॉर्म किया, तो Al2O3 क्या करता है, मेटल के सरफेस के ऊपर एक कोटिंग फॉर्म कर देता है, जो कि यानी कि कोटिंग इतना अच्छा होता है कि वो फिर से एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर नहीं सकता। तो इसके वजह से कभी कभी ये मतलब एल्यूमिनियम जो एयर में होता है,
तो Al2O3 फॉर्म करता है, ये प्रोटेक्ट करता है कोरोजन होने से भी। तो इसलिए एल्यूमिनियम का रिएक्टिविटी एयर के साथ इतना अच्छा नहीं है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ Al2O3 के अंदर। मेटल के ऊपर ऐसे डिपोजिशन होने के वजह से अगर उसके यानी कि रिएक्टिविटी कम हो जाते हैं उसके सरफेस के ऊपर, इस दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नोन एज पैसिव प्रॉपर्टी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पैसिव प्रॉपर्टी। तो बच्चा अपने पास गैलियम इंडियम, तो गैलियम इंडियम डेफिनेटली फॉर्म करते हैं अपने हिसाब से, यानी कि हम बोल सकते हैं Go2O3 और In2O3 ये फॉर्म करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और जो Tl है थैलियम, थैलियम क्या फॉर्म करता है, TlO। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग इसको खुद से नोट्स बना के लिख सकते हो, क्योंकि Tl का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1। मैंने आपको दो तरह के बताया, या तो M2O3 फॉर्म होगा या तो MO फॉर्म होगा। तो जिस जिसका भी +3 है वो M2O3 फॉर्म करता है, जिस जिसका +1 है वो MO फॉर्म करता है। MO कौन फॉर्म करेगा, TlO। M यहाँ पे यानी कि एलिमेंट है। तो सोचो एल्यूमिनियम भी बना सकता है, बोरॉन भी बना सकता है, पर बोरॉन इम्प्योर बोरॉन बनाता है, प्योर बोरॉन नहीं बना पाता है। एल्यूमिनियम के साथ जब भी बनता है Al2O3 का एक कोटेड मतलब एक लेयर बन जाता है उसके सरफेस के ऊपर, जो पैसिव कर देता है एयर के साथ रिएक्शन को। गैलियम इंडियम शो करते हैं, वरस थैलियम मतलब गैलियम इंडियम क्या करते हैं, मतलब M2O3 टाइप बनाते हैं, वरस Tl क्या करता है, TlO बनाता है, क्योंकि इसका जो ऑक्सीजन स्टेट है उसको हम लोग +1 मानते हैं, राइट। ऑक्साइड होता है, बोरॉन ऑक्साइड, बोरॉन ट्राईऑक्साइड जिसको बोलते हैं हम लोग, B2O3, बोरॉन ट्राईऑक्साइड ही चलो लिख देता हूँ। बोरॉन के ऑक्साइड क्या होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं। एल्यूमिनियम और गैलियम के क्या होते हैं, अम्फोटेरिक नेचर में होते हैं, अम्फोटेरिक। और इसके बाद जब आता है यानी कि थैलियम और इंडियम, ये दोनों क्या होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं। तो अम्फोटेरिक का मतलब क्या है, ये एसिड की तरह भी काम कर सकता है, बेस की तरह भी काम कर सकता है। एसिड के बारे में तो पता है आपको और बेस के बारे में पता है। अम्फोटेरिक क्या होता है, एक्ट एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस, एसिड एज वेल एज बेस। बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में इसको पढ़ के रखा है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी बहुत बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना इसको। बोरॉन के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि एसिडिक नेचर होते हैं। गैलियम और एल्यूमिनियम के एम्फोटेरिक नेचर होते हैं। थैलियम और इंडियम के क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, तो इसको अच्छे से याद रख लेना। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, तो कल भी सेशन होगा। उस सेशन से पहले आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप ये जो पोर्शंस आज मैंने कवर किया है, कुछ कुछ जाना पहचाना यानी कि पोर्शन था आपके पास, तो आप जितना अच्छे से हो सके इसको कवर कर लो, रिवीजन करो, इसके नोट्स बनाओ। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इनऑर्गेनिक के लिए NCERT इज़ मस्ट, इवन इफ फॉर JEE एडवांस द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉलो द NCERT। तो जितना आप NCERT को फॉलो करोगे उतना ही अच्छा है। सो तब तक आप अच्छे से रहो, स्टे सेफ एंड थैंक यू।